Bismillahirrahmanirrahim. So, for today's lecture, our topic is intersection. Basically, we have two types of intersections. One of them is at-grade intersection, and the other is grade separated intersection. So, let us discuss this term intersection because we all are familiar with intersection like when two or more roads or pavements or crosses each other, then the point or the place where they cross each other, it becomes an intersection. And from traffic engineering or transportation engineering point of view, intersections are complex and critical locations where we have to pay a great we have to pay great intentions because there are chances of or there are risks of collision or misinterceptions, or in other way we can say that there are risks of accidents. And accidents are directly linked or related with human life or human security or health. So, as in my previous lectures, I already told you that we cannot put any life at risk at any cost. So, intersections play their role in the traffic accidents or the safe movement of traffic from one route to the other. So, let us see in detail what are intersections. Intersection is an area shared by two or more roads. As I have already told you, this area is designated for the vehicles to turn to different directions to reach their desired destinations. This is because vehicles moving in different directions want to occupy same space at the same time. Like if we take the example of Raul Chowk or the Tramri Chowk, which is the very near to Abasin. So if we take the example of Rawal Chowk, then when we are coming from Abasin towards Rawal Chowk, then we have to either move left or right. And if we have to move right, then there is a roundabout. Okay, so we have to go through that roundabout, and then again we have to turn our left signal on, and then we will get back into the Mari road. So that is an intersection, and specifically at that intersection we have roundabout. So intersection, I hope कि आप सबको आइडिया होगा कि ये है कि आप सबका जो है ना इंटरसेक्शन के साथ जो है ना इंटरेक्शन हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज हम सारा जो है ना वास्ता पड़ता है रोड से, इंटरसेक्शन से। तो आज का जो लेक्चर है ये रियल लाइफ जो हमारी है, इसमें हम सबके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऐसे, ठीक है। So there are two main types of intersections. The one is grade separated intersection or interchanges, ठीक है, grade separated, and the other one is at graded intersection. ग्रेड सेपरेटेड का क्या मतलब हुआ कि अब जिस तरह अगर मैं रावल चौक की एग्जांपल आपको दूं तो वो कौन से वाला है, वो है एट ग्रेडेड इंटरसेक्शन, यानी कि एक ही ग्रेड जो है ना उसके ग्रेड में डिफरेंस नहीं आया लेवल में, ठीक है। तो एक ही रोड के ऊपर से गाड़ियों ने मूव करना है, जबकि जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है वो कौन से, जिसे हम इंटरचेंज कहते हैं, वहां पे क्या होता है कि अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो आप आइदर फ्लाईओवर पे जाएंगे या अंडरपास पे जाएंगे, ठीक है, या राइट मुड़ना है, तो यानी कि वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स होता है एट डिफरेंट एलिवेशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल, यानी कि जो हमारी नॉर्मल ग्रेड में रोड आ रही है वो भी एक साथ में आप कह लें कि अंडर अंडर जो जो क्या कहते हैं फ्लाईओवर हो गया, इसी तरह जो अंडरग्राउंड रोड्स हैं या जो भी हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं गाड़ियों को, ट्रैफिक को मूव करने के लिए, ठीक है।
So those are the grade separated, यानी कि grade नाम से ही जाहिर है कि उसके रोड्स के हाइट में या एल्टीट्यूड में, उसकी ग्रेड में, उसके लेवल में डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्रेड के साथ हमने उनको सेपरेट किया हुआ है। Let us see both these drawing types in detail. So the first one is grade separated intersection. We all have the experience of grade separated intersection and add graded intersections as well. So grade separated intersections, we call them as interchanges as well. It is a bridge that eliminates crossing conflicts at intersections by vertical separation of roadways in space. ठीक है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि मरी रोड यानी कि फैजाबाद से जब आप आगे जाते हैं, मेरे ख्याल से 6 रोड से थोड़ा सा आगे होके, तो चांदनी चौक वाला एरिया में या उसी लियाकत बाग या चांदनी चौक लियाकत बाग इसी एरिया में कहीं आगे पीछे एक दो जगह हमारे पास आपके लिए जो है ना अंडरपास भी आता है, फ्लाईओवर तो खैर वैसे ही है मेट्रो की फॉर्म में। तो वो हमारे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर आप उसकी एग्जांपल लें, जो 6th रोड है, 6th रोड वहाँ उस एरिया में ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो है वहाँ पे भी है, फ्लाईओवर वहाँ पे भी दिया मैंने, ठीक है। तो फ्लाईओवर भी है और नीचे से भी इंटरसेक्शन है, मतलब ये एट सेम टाइम ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन भी है एंड वो एंड ग्रेड इंटरसेक्शन भी है, ठीक है। Route transfer at grade separation is accommodated by interchange facilities consisting of ramps. The interchange configuration was designed in such a way to accommodate economically the traffic requirement of low operation on the crossing facilities, physical requirement of topography, dwelling lane, right of way, direction of movement. यानी कि इंटरचेंज रैम्प्स, यानी कि वो रैम्प्स की बात कर रहे हैं कि ये जो अपना ग्रेड सेपरेटेड या इंटरचेंज हैं उस पे हम उनको एकोमोडेट करते हैं रैम्स की फॉर्म में, यानी कि रैम्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल सेक्शन पे, ठीक है। और वो जाके फिर कुछ इंटरसेक्शन वाले एरिया के बाद वो जाके किसी मेन रोड पे हम दोबारा उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि हम इसको ये जो इंटरचेंज हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी ट्रैफिक को इकोनॉमिकली जो है ना एकोमोडेट करें, दूसरा हम सेफ्टी को भी इंश्योर करें, दूसरा उसके फ्लो को भी जो है ना डिस्टर्ब ना होने दें, ठीक है। और ये इस तरह के जो हमारे इंटरचेंजेस हैं ये नॉर्मली जगहों पे जाते हैं दिए जाते हैं जहाँ पे हमें टोपोग्राफी, राइट ऑफ वे और ये चीजें जो है ना हमें अलाउ करें, तब हम इस तरह के इंटरचेंजेस जो है प्रोवाइड करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मेरे? ऑलरेडी हम सब ने इन चीजों को देखा है, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को थोड़ा तेज लेके चलूंगा क्योंकि हमारे पास एक और भी छोटा सा पार्ट है इसका। तो हम सब का जो है ना वास्ता पड़ा हुआ है इस चीज से, तो ऑब्जेक्टिव इसीलिए हमें क्लियर होंगे ऑलरेडी, लेकिन मतलब आपके लिए स्पेसिफिकली अगर हम देखें इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन इज टू एलिमिनेट ऑल grade crossing conflicts and to accommodate other intersecting manures by merging, diverging and weaving at a relatively low speed, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हमारा ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन नहीं होगा या एड ग्रेड इंटरसेक्शन पे होता ये है कि एक ही रोड के ऊपर से गाड़ियां क्रॉस करती हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक इंटरचेंज नहीं, एक जिसे हम कहते हैं दो रोड जहाँ पे ज्वाइन होती हैं, मतलब इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन पे normally there are 32 points, 32 conflict points. conflict points का क्या मतलब है? मतलब वहाँ पे 32 different points हैं जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस हैं, जहाँ पे कोलिजन के, कोलैप्स के चांसेस हैं, ठीक है, ट्रैफिक के। तो अब हमारा जो इनका जो पर्पस है बेसिकली ये है जो इंटरचेंजेस का, कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को कम करें
या तो बिल्कुल रिमूव कर दें या तो बिल्कुल कम करें, ठीक है। और साथ साथ जो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस ट्रैफिक को अकोमोडेट करें किस फॉर्म में, जो मर्ज हो रही है कहीं दूसरी साइड से आके मर्ज हो रही है या कहीं पे डाइवर्ट हो रही है या जो लो स्पीड में मूव कर रही है, तो उन ट्रैफिक उस इन सारी जो टाइप्स ऑफ ट्रैफिक हैं उसको हम अकोमोडेट करें इन अ सेफ वे, ठीक है। मेजर इंटरचेंजेस जो हैं मेरे ख्याल से जो ये सारे के सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी और इन इस एरिया में होंगे, इवन लाहौर में और कराची में ओबियसली होंगे। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये सारे होंगे, अंडरपास, ओवरपास, ट्रम्पेट इंटरचेंज, डायमंड इंटरचेंज, क्लोवर लीफ, partial clover leaf and directional interchange. So let us discuss them one by one. Remember, all these interchanges comes under the category of at grade intersection. Sorry, uh, grade separated intersection. तो अंडरपास का सबको एक्सपीरियंस है कि अंडरपास और टनल इज एन अंडरग्राउंड पैसेजवे completely enclosed except for openings of entry and departure. Commonly at each end, an underpass may be provided for pedestrian or vehicular traffic और रेल ट्रैफिक, ठीक है। तो ये अंडरपास है, हम सबको इसका एक्सपीरियंस है। इस तरह के अंडरपासेस हमें यहाँ पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओवरपास, एन ओवरपास आल्सो नोन एज फ्लाईओवर is a bridge, road, railway or similar structure that crosses over another road. यानी कि एक नीचे वाला जो रोड है उसको ऊपर से जो क्रॉस करेगी, आइदर जो रोड जो है आपने रेलवे के लिए बनाई है, आइदर हमने अपना ट्रैफिक ही के लिए बनाई है या फिर हमने मेट्रो के लिए बनाई है, तो वो है ओवरपास, ठीक है। पेडेस्ट्रियन ओवरपास allow pedestrian safe crossing over bus road without impacting traffic. ये वाला जो ओवरपास जो पेडेस्ट्रियन है कि ओवरपास है, ये नॉर्मली आपको सदर नहीं, आप अगर आए ना पेशावर रोड से सदर की तरफ, तो आपको वहां पे नजर आएंगे, पिंडी में भी जगह जगह हैं ये वाले ओवरपासेस, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन को की जो सेफ मूवमेंट को या सेफ रोड क्रॉसिंग को इंश्योर किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक, ठीक है। दीज आर द ओवरपासेस। इस केस में हमारे जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो इसके मूव करती है। Now, trumpet interchanges. These interchanges have been used where only highway terminates at another highway. यानी कि ये वाले इंटरचेंजेस वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे एक हाईवे खत्म हो जाए, एक हाईवे यानी कि टर्मिनेट हो दूसरी हाईवे पे, तो वहां पे इस टाइप के इंटरचेंजेस को हम यूज करते हैं। चूंकि अगर दो हाईवे एक जगह पे मीट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हाईवे और हाईवे पे नॉर्मली स्पीड 100 नॉर्मल होती है, मैं 80 टू 90 100 व्हाटएवर, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आप डायरेक्ट उसको आगे से जो है ना जैसे राइट टर्न 90 के एंगल पे नहीं दे सकते आप, ऑब्वियसली इंटरचेंज और उनको एक रैंप टाइप रोड या प्रोवाइड करेंगे जिससे वो गाड़ी दूसरी हाईवे में इंटर होगी। तो ऑब्वियसली उसको अपनी स्पीड को ओवरकम करना होगा, अदरवाइज अगर आप ये नहीं देंगे तो वो एक हाईवे से दूसरे हाईवे पे गाड़ी को बगैर ब्रेक के जो है ना इंटर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो दीज इन्वॉल्व एट लीस्ट वन लूप रैम्प कनेक्टिंग ट्रैफिक इधर entering or leaving the terminating express there is the far lane of the continuous highway. The principal advantages are low construction cost. अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं ट्रम्पेट इंटरचेंजेस की, फैजाबाद इंटरचेंज की एग्जांपल ले रहे हैं, जहां पे मरी रोड से जा रहे होते हैं, तो मरी रोड इटसेल्फ इज अ हाईवे, ठीक है। और मरी रोड जो है और नीचे जब फैजाबाद आप यहाँ से जाते हैं तो नीचे इस्लामाबाद हाईवे जा रही होती है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली उन्होंने जो है ना ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और उसको अगर आपने उसमें मूव करना है तो आपको राइट टर्न या लेफ्ट टर्न के लिए उन्होंने अलग से रैंप टाइप
प्रोवाइड किया हुआ है जिसको आप यूज करके फिर जाके नीचे इस्लामाबाद हाईवे पे होते हैं। इन द अपने एडवांटेज भी ये है कि लो कॉस्ट लो कंस्ट्रक्शन की क्लास में ये चीज, मतलब ये ऊपर से एक हाईवे जा रही है और ये नीचे से दूसरी जा रही है। तो अगर इसने इस हाईवे वाले ने इस पे कोई ट्रैफिक है जिसने इस पे आना है, तो ऑब्वियसली वो इस रूट को यूज करके फिर से जाएगी। इसी तरह अगर इस ये जो हाईवे है इस इधर से अगर किसी ने इस हाईवे पे जाना है, तो ऑब्वियसली ये अगर राइट या इसको यूज करेगी या इसको यूज करेगी, ठीक है, इस ट्रैफिक को, इस रूट को या लैंड टाइप रोड, ठीक है। So these are this is the example of truncated train जिसपे at least one loop ये वाला one loop provide किया सर जाता है। ये पेशावर मोड बेस्ट एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा ना स्टार्ट में ही लेक्चर पे कि ये सारे के सारे जो इंटरचेंजेस हैं ये सारे के सारे पिंडी इस्लामाबाद में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको मतलब कोरिलेट आपको मेरे भी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो ये इस्लामाबाद के इंटरचेंजेस का, देखे थे तो ऑब्वियसली मैंने भी है। आप में से जो इस्लामाबाद पिंडी के बिल्कुल रहने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, उनको ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रम्पेटेड इंटरचेंज, ठीक है। नाउ डायमंड इंटरचेंज is a common type of road junction used where a freeway crosses a minor road। अच्छा, ट्रम्पेटेड इंटरचेंज था जहाँ पे एक हाईवे दूसरे हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं, या मतलब एक हाईवे दूसरे पे आके खत्म हुआ है, जो भी, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि डायमंड इंटरचेंज में मतलब जहाँ पे एक फ्री वे है, बिल्कुल फ्री वे है। आप फ्री वे की एग्जांपल ले लें, फ्री वे मतलब उस रोड को कहते हैं जिसपे आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, आप बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मूव कर रहे हैं। अब अगर हम कश्मीर हाईवे की एग्जांपल ले लें, तो कश्मीर हाईवे इज नॉट अ फ्री वे, क्योंकि उस पे आप जब कुछ एक किलोमीटर के लिए 2 के बाद आप जाते हैं तो आगे आपको जो है सिग्नलाइज्ड सेक्शन मिलता है, या आपको लेफ्ट या राइट टर्न के लिए आपको रोड मिलती है, जो वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रैफिक जैम होती है। तो दिस इज दैट इज नॉट अ फ्री वे। फ्री वे वहाँ जहाँ पे आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, आपको पता है कि यहाँ से इस सेक्शन से मैं निकलूंगा और इस सेक्शन तक मुझे दरमियान में कोई रुकावट नहीं है, मैं सीधा मूव करूँ, ठीक है। तो एक फ्री वे अगर माइनर रोड के को मीट करेगी या क्रॉस करेगी, तो वहां पे हम डायमंड इंटरचेंज देते हैं। Diamond interchange uses less space than most type of freeway interchange and avoids the interweaving traffic flows that occurs in interchanges such as Cloverleaf. Diamond interchange are most effective in areas where traffic is light. मतलब इस तरह के। So this is not, the example of a diamond interchange, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे अब ये नीचे वाली फ्री वे है, ठीक है, ये नीचे, और ऊपर ये रिलेटिवली माइनर रोड है, ठीक है, जिस पे अब फ्री वे, अगर इसको फ्री वे तो ऑब्वियसली हमने उसको ऑब्स्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। फ्री वे से अगर किसी ने ऊपर आना है, इस माइनर रोड पे आना है, तो उसके लिए हमने ये देखें यहाँ से भी रोड प्रोवाइड किए, यहाँ से भी प्रोवाइड किए, इसी तरह यहाँ से अगर फ्री वे पे जाना चाह रहा है तो उनको भी हमने अकोमोडेट किया है। So it becomes a shape of a diamond. So that's why we call it as a diamond again. ये इस तरह से, ठीक है ना। ये जो है ना ये पॉइंट्स, ये these are the conflict points, ये हम आगे देखते हैं आगे, ठीक है। ये है जी क्लोवर लीफ इंटरचेंज, जिसमें 4 लीफ्स होते हैं, मतलब 4 लूप्स, ठीक है। A two level interchange in which left turns are handled by ramp roads. लेफ्ट टर्न्स मतलब कैसे, अगर ये आ रहा है, ठीक है, ये अब ये नीचे से कोई एक फ्री वे या कोई भी मोटरवे या कुछ भी जा रही है, तो अब इसने अगर लेफ्ट मूव करना है, तो ये देखें इसके लिए ये रैंप रोड प्रोवाइड किया, ये ब्लू वाला, ये तो ये ऊपर आगे से एंटर होगी। इसी तरह अगर इसने यहाँ इस वाली ट्रैफिक के नीचे जाना है, इसको भी देखें लेफ्ट के लिए ये रैंप रोड प्रोवाइड की गई है। और इसी तरह अगर इधर से कोई आ रही है, उसने इसके ऊपर आना है, तो ऑब्वियसली ये इस लेफ्ट पे है, ये इसका लेफ्ट बनता है, इसी तरह यहाँ से ये लेफ्ट बनता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो सर क्लोवर ये लीफ की शक्कर बड़ियों वाला भी ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारे काफी सारे हैं। इवन आप ये अपना कश्मीर हाईवे पे भी सारे आ जाते हैं। कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद हाईवे को जहाँ पे मीट करती है, वहाँ पे भी इन्होंने काफी सारे प्रोवाइड किए हैं। तो अब मुझे चूंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि कौन सी
इंटरचेंज, क्योंकि मुझे मतलब ये जो वहाँ के अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से होता है, ये फिगर्स देख के उनको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो क्लोवर लीफ की ये जो रियल टाइम एग्जांपल है दिस वन, ठीक है। आगे चलते हैं जी। पार्शियल क्लोवर लीफ, पार्शियल का काम क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे अगर 4 लूप प्रोवाइड किए हैं, पार्शियल में 2 होंगी, ठीक है। पार्शियल क्लोवर लीफ में द मल्टीप्लिकेशन दैट कंबाइंस सम एलिमेंट ऑफ डायनामिक विद वन और मोर, ठीक है। बाकी किसी किसी की मेरे ख्याल से पढ़ने की ऐसे नहीं जरूरत। तो ये है जी क्लोवर लीफ की रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्शनल इंटरचेंज। डायरेक्शनल इंटरचेंज प्रोवाइड्स डायरेक्ट पास फॉर लेफ्ट टर्न्स, ठीक है। यानी कि लेफ्ट टर्न्स के लिए डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करता है। एंड these interchanges contain ramps for one or more direct or semi-direct left turning movements, interchanges of two freeways, or interchanges with one or very heavy turning movements, usually when direct ramps, which have higher speed of operation and higher capacity compared to loop ramps. यानी ये क्या कह रहा है कि डायरेक्शनल जो इंटरचेंजेस हैं ये बेसिकली जहाँ पे हमारी हाई स्पीड ट्रैफिक जहाँ पे मूव करेगी वहां पे हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं और इनकी डायरेक्ट एंट्री को इंश्योर करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इतनी फास्ट स्पीड व्हीकल्स होती है कि, और ये लोकेशन भी ऐसी है कि जहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक रोड एक रोड से दूसरी पे इन्होंने है, और यहाँ पे ऐसा कोई जो आपके आस पास पे आबादी भी नहीं है, तो वहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे हम इनकी डायरेक्ट उनकी एंट्री को इंश्योर करते हैं। तो दीज आर द डायरेक्शन, बाकी थ्योरी सिंपल सी है ये चीज, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई ऐसा कोई कमर्शियल कोई ऐसा कोई आबादी कोई चीज नहीं है। तो इधर इसका इनका सिर्फ पर्पस क्या है कि आपने जस्ट एक तरह और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाना लगा हूँ इसी डायग्राम में कि पर्पस हमारा क्या है कि हमने ट्रैफिक को की डायरेक्ट एंट्री को दूसरी रोड पे दूसरी मेजर रोड पे उसकी एंट्री को इंश्योर करना है। यहाँ पे ये देखें, अगर चूंकि गाड़ियां हाई स्पीड पे होती हैं तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे मेज करवा सकते थे, लेकिन नहीं। उसकी वजह ये है कि ये देखें प्रॉपर हमने रेडियस इसको देंगे ताकि वो आराम से उसकी अपनी स्पीड भी मेंटेन रखे, मूव करे और फिर आगे से मर्ज हो। डायरेक्ट हम इसकी एंट्री इस रोड पे नहीं दे सकते थे। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ वी हैव 8 ग्रेड इंटरसेक्शन, यानी कि अब ग्रेड सेम है, फ्लाईओवर और अंडरपासेस का कांसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है एट ग्रेड इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन के वो कह रहे हैं कि 2 मेन टाइप्स हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? एट ग्रेड इंटरसेक्शन विच इज ऑल द एक्सचेंजेस बिटवीन द रोड्स टेक प्लेस ऑन द सेम प्लेन। मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे ये अपना अच्छा वो आ गया है, यानी कि all the exchanges between the roads take place on the same plane, ठीक है। तो there are two main types of at grade intersection: standard at grade intersection and roundabout at grade intersection। यानी कि in any case both have the at grade intersections, ठीक है। Roundabout is also categorized as an at grade intersection, ठीक है। Roundabout is no different thing। So first of all we have at grade standard at grade intersection। ये थोड़ी सी फिगर्स हैं, ये आपको सही क्लियर होगी। D ये this is roundabout, this is channelized। So most intersections have 3 or 4 legs, but multi-leg intersections 5 and even 6 leg intersections are not unusual, ठीक है। ये होते हैं नॉर्मली। अगर हम अपने इसी राहुल चौक की एग्जांपल ले लें, वहां पे कितने लेग है इस सेक्शन में? मतलब सर जी 3। 3 तो ना हो यार, 4 मेरे ख्याल से। एक जो ऊपर रावल डैम की तरफ से रोड आ रही है, एक ये अंदर हमारी जो रोड आ रही है 2, और
यानी कि नहीं सर 4 है एक्चुअली। 4 हो गया, ठीक है। 4 है सर, ठीक है 4 4 साइड होते हैं। तो वो 4 ले लेते हैं। ये देखें अब जिस तरह की यहाँ पे आपके लिए फिगर बनेगी तो उसको उसी के रिजल्टेंट दे दे, उसको नाम दिया जाए जैसे टी, दिस इज क्यू टी, दिस इज वाई, राइट एंगल ऑफसेट ऑफ ई एंड सो ऑन, 6 लाख 5 लाख इंटरसेक्शन। ये 6 लाख 5 लाख भी हैं, पिंडी सांबा में है, इवन मेरे ख्याल से ये इधर भी हैं, जब आप आईजेपी रोड पे जाते हैं और ये मरी रोड पे भी हैं जगह जगह, ठीक है। So key element of road intersection. So these are the key elements. मतलब एक road, this is the major, ठीक है, and this one is the minor, ठीक है। अब key elements क्या होंगे कि divisional island, मतलब ये एक island बना हुआ है। Island का क्या मतलब हुआ, एक raised platform पे आप थोड़ा सा सा बनाते हैं जिसको ये ट्रैफिक जो है उसको यूज ना कर सके, ठीक है। तो दिस इज एन आइलैंड एंड दिस इज टर्निंग रोडवे। ये मतलब उन्होंने चैनल सा बना दिया है, गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उन्हें इसके अंदर अंदर रहना है, ठीक है। मूव जो राइट लेफ्ट में मूव कर, लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, जो गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रहे हैं उन्हें इसी चैनल इसी जो है ना आपके अलाउड जो है ना लोकेशन है या जो भी पाथ है जितना भी दिया हुआ है, तो इसी के अंदर उन्होंने रहने बाउंड कर दिया हुआ है गाड़ी को। तो इसे चैनलाइज आइडेंटिटी आइलैंड, ठीक है। ये ऊपर वाला आइलैंड हो गया हमारा, ये मतलब ये सारा रीजनल आइलैंड, ठीक है। और टर्निंग रोडवे कौन सा था, ये वाला ना, जिस मतलब इस जगह को हम जिससे टर्न करेगा टर्निंग रोडवे हो गया। एंड चैनलाइज आइलैंड ये ऊपर वाला इस चीज को कहते हैं, ठीक है। फिर ये आगे है पेवर मार्किंग एंड सो ऑन, बाकी आप देख लेंगे सेक्शन में फ्लैग, डिपार्चर, क्रॉस वॉक, ठीक है। बाकी हमने इसके उसमें नहीं जाना डिटेल में, हमें आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो हम जब यहाँ पे इंटरसेक्शंस और फ्लाईओवर्स या आपके उन चीजों को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज सिंपल इंटरसेक्शन. Simple intersection contains the street's typical cross section and number of lanes to the intersection on both the major and minor street. Simple best suited to locate where auxiliary turns are not needed to achieve the desired level of service. This is the simplest form of intersection. दो रोड जो है या वो एक दूसरे के क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे तो खैर दिस इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड पिक्चर, लेकिन नॉर्मल जो हमारी है ना रियल लाइफ की ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से जो आपके रोड्स हैं दोनों एक तरफ मेजर है, दोनों ऑब्वियसली एक मेजर होगी माइनर होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों को सेम शो किया हुआ है। हाँ, ये चीज मैं आपको कह रहा था कि अगर राउंड अबाउट नहीं होगा किसी इंटरसेक्शन पे तो वहां पे वहां पे 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप राउंड अबाउट प्रोवाइड कर दें तो वो 32 खत्म होके 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स रह जाते हैं वहां पे। तो लेट अस सी कि हाउ दे आर 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, ठीक है। सिंपल इंटरसेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें तो मे बी वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाए, क्योंकि आप सिंपल इंटरसेक्शन से अगर इट मींस कि अगर ये आप दो रोड्स ज्वाइन हो रही हैं, अगर 4 हो जाए या 3 रोड 6 लेग हो जाए, दिस इज 4 लेग 6 लेग हो जाए, तो ऑब्वियसली वहां पे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ये सिंपल इंटरसेक्शन के केस में नॉर्मली डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आप देख लें, आपको इससे बताया भी है कि एक तो ये ट्रैफिक है जो इस आपके लिए इसको अगर हम मेजर ले रहे हैं, मेजर रोड इसको ले रहे हैं, मेजर रोड में जो वहां से इनकमिंग ट्रैफिक है तो उसके कितने पॉइंट्स हैं, 4 मतलब 1, और इधर से जो ये वाली ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे एड ग्रेड इंटरसेक्शन है, इधर से यहाँ पे जो आ रही है गाड़ी ऑब्वियसली एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, क्योंकि कुलियन के चांस एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 4 तो ये हो गए सीधे, ठीक है। इनके 4 थ्रू ट्रैफिक। इसी तरह राइट टर्निंग ट्रैफिक के कितने, 4। यहाँ वाली अगर राइट टर्न करेगी तो एक उसका कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सिमिलरली
यहाँ वाली राइट राइट टर्न करेगी तो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये वाला राइट भी हो गया, ये वाला राइट जो है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से राइट टर्न करेगी तो ये चार, तो ये चार कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, 2 3 4, ये चार राइट टर्न। इसी तरह 8 है राइट टर्न थ्रू ट्रैफिक, यानी कि सेम अगर राइट टर्न थ्रू ट्रैफिक का क्या मतलब हुआ कि इधर से अगर मूव करेगी, मतलब ये वाला जो दार ब्राउन है, ठीक है। तो इधर ऑब्वियसली इसने भी ट्रैफिक, इस पे ये जो ट्रैफिक आ रही है इसमें भी इसी रोड को यूज करके मूव करना है, राइट टर्न लेना है। और इसमें भी इस वाली ट्रैफिक ने इसी रोड को यूज करके राइट टर्न लेना है, सो ऑन। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो सिमिलरली ये 8 और 8 16। अब आ जाते हैं जी, चार मर्जिंग के हमारे। जब मर्ज होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से भी गाड़ी जा रही है उसमें, ठीक है, हमने ये रोड प्रोवाइड किए है, तो जहाँ एक यहाँ से आ रही है, तो ये जब मर्ज होगी तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, ठीक है। एंड सो ऑन कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से मर्ज होकर दूसरी रोड पे जा रहा है, वहां पे ऑब्वियसली ये जो ग्रीन हमने रैम्प्स प्रोवाइड किए हैं, इस रैम्प से भी गाड़ी, क्योंकि अगर इधर वाली ट्रैफिक है वो इस रैम्प यूज करके इधर आएगी, लेकिन ये वाली जो रोड है, जो यहाँ से जो गाड़ी आएगी वो इधर से आएगी और यहाँ से बच के यहाँ पे आगे फिर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये चार मर्जिंग है, इसी तरह चार डाइवर्जिंग है, ये लो है। अब ये जो डाइवर्जिंग वाला है, एक इसको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे है, अब इसको नहीं पता इसने इधर जाना है या इसने इधर जाना है, लेकिन दूसरी साइड पे पीछे से ट्रैफिक भी आ रही है ना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ठीक है। इसी तरह ये चालू एंड P denotes the for pedestrians, यानी कि पेडेस्ट्रियन के लिए भी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है। ऑब्वियसली कोलिजन इज अ कोलिजन, आइदर वो गाड़ी या दो गाड़ियों का आपस में हो या एक गाड़ी और एक पेडेस्ट्रियन का हो, ठीक है। तो 8 ये पेडेस्ट्रियन के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट, यानी कि हर साइड पे 2, ठीक है। तो टोटल अगर हम इसको सम अप करें तो देयर आर 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। जो बात मैं कर रहा था कि राउंड अबाउट प्रोवाइड करने से 32 कम होके 8 रह जाते हैं, वो आगे आएगी स्लाइड, ठीक है। अच्छा, हमने बात की कि एक सेक्शन है उसमें चैनलाइज्ड सेक्शन भी होते हैं, मतलब एक तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसी राउंड अबाउट इज आल्सो टाइप ऑफ चैनलाइज्ड सेक्शन, मतलब हम गाड़ी को बाउंड करते हैं कि भाई आप इस चैनल के अंदर क्रॉस करना है, ठीक है। चैनल के बाहर हम क्रॉसिंग करते हैं कि आप एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बना देते हैं, कोई भी कंक्रीट का कुछ भी लगा देते हैं, साइड रोड कोई बैनर कोई स्ट्रीट लाइट या व्हाटएवर कुछ भी लगा देते हैं जिसको रोड जो व्हीकल है या ट्रैफिक है उसका जो टायर है जो है उस एरिया को यूटिलाइज ना कर सके, तो उसे हम कहते हैं चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। यानी कि उसे हम आइलैंड कहते हैं कि हमने आइलैंड बना दिया या मार्किंग कर दी एक तरह से। तो मार्किंग करने का ये मतलब है कि आप वार्न कर रहे हैं, गाड़ी दूसरी यूज कर सकती है क्योंकि आपने ग्रेड तो है नहीं, लेकिन आप अपने एक तरह से उसको चैनल के थ्रू या एरोस बना दिए, तो आपने बता दिया कि भाई इस चैनल को बदल देंगे या इसे मूव कर देंगे। सिमिलरली आप आइलैंड बना देते फिर तो मार्किंग ना भी करें तो फिर तो बाउंड हो गया, ठीक है। तो vehicles approaching an intersection are directed to definite paths by island marking etc. and this method of control is called channelization. यानी कि उसको आप कंट्रोल करते हैं बाय आइलैंड और बाय मार्किंग, ठीक है। और इस मेथड को हम कहते हैं चैनलाइजेशन। चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। अब ये किस टर्म में बात कर रहे हैं? Channelized intersection provides more safety and efficiency as compared to non-channelized intersections, ठीक है। as compared to non-channelized intersection, not grade separated intersections, क्योंकि grade separated intersections में safety और efficiency ज़्यादा होती है। It reduces the number of possible conflicts by reducing the area of conflicts available in the carriageway. यानी कि ये भी जो चैनलाइज्ड सेक्शन है ये भी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको भी कम कर देता है, क्योंकि इसने रिड्यूस कर दिया एरिया को बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
क्योंकि पीछे हमने जो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, इस एरिया में सारे का सारा एरिया जो है था वो ट्रैफिक के लिए अवेलेबल था। दैट्स व्हाई यहाँ पे किसी भी जगह पे ये जो था पॉसिबल। बट अगर आप चैनल्स प्रोवाइड कर दें तो क्या होगा कि आपने एरिया को रिड्यूस कर दिया, ऑब्वियसली एरिया को रिड्यूस करेंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स भी कम होंगे। If no channelizing is provided, the driver will have less tendency to reduce the speed while entering the intersection from the carriageway. यानी कि अगर आप channelizing, if no channelizing is provided, the driver will have less tendency to reduce the speed. Obviously, channels provide नहीं किए, ठीक है? तो ड्राइवर को क्या जरूरत है भाई स्पीड स्लो कर दे? ऑब्वियसली वो स्पीड स्लो नहीं करेगा, आगे जाके उसने कोलाइड ही करना है। अब ये जो चैनलाइज्ड सेक्शन है, 3 लाइन या टी सेक्शन आप कह रहे हैं, तो इस यहाँ पे ये देखें उन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने ये जो व्हाइट है, दिस इज आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने गाड़ियों को बाउंड कर दिया है कि भाई इधर मूव करना है तो यहाँ से जाना है, सिमिलरली यहाँ इधर से जाना है, तो ये एक तरह से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को कम कर दिया है, सेफ्टी बढ़ गई है, ठीक है। और आपने ड्राइवर्स को बाउंड कर दिया है। Now this is the real life, real time example of channelization section. ये देखें यहाँ पे मार्किंग हुई है, बट इस केस में मेरे ख्याल से उन्होंने आइलैंड प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे ये देखिए आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये आइलैंड है, ठीक है। ये सारे के सारे जो वाइट हैं ये आइलैंड प्रोवाइड किए हुए हैं, तो साथ में मार्किंग भी यूज हुई है। So this is how we have the we design the channelized section. अब ये भी चैनलाइजेशन सेक्शन है, बट यहाँ पे सिर्फ मार्किंग हुई है। पीछे क्या था कि मार्किंग भी थी प्लस आइलैंड भी प्रोवाइड किए हुए थे, बट इन दिस केस वी ओनली हैव पेमेंट मार्किंग, ठीक है। अब हम मार्किंग का बता रहे हैं कि उससे लेफ्ट में मूव करेंगे वो इस जगह पे यूज करेंगे, राइट वाली उधर जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। सर इस मार्किंग पे गाड़ी कड़ी नहीं करनी है ना? नहीं ये नहीं करना है। हाँ, अगर कोई गाड़ी के बाहर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ, तो वो इस जगह पे यूज कर सकती है, ठीक है। या कोई पेडेस्ट्रियन जाके खड़े हो गए तो वो इस पे जाके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी को ऑब्वियसली आपने चैनल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, चैनल्स सेक्शन दिए हुए हैं ना, तो गाड़ी इसके ऊपर नहीं आएगी, बगैर किसी की जरूरत है। Now we have roundabout intersections. Roundabout is a type of circular intersection or junction in which road traffic flows almost continuously in one direction around the center of the island. ठीक है, it provides maximum safety in all types of intersection. तो बात वही है कि ये जो है मैक्सिमम सेफ्टी सारे के सारे जो एड इंटरसेक्शन हैं सबसे ज्यादा यानी सेफ्टी जो है राउंड प्रोवाइड करता है, और सारी की सारी गाड़ियां उसी एक राउंड अबाउट के घूम रही होती हैं, व्हाटएवर के उनमें जहां भी जाना ये चीज। आई होप आप सारे इस चीज से फैमिलियर हैं, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं जरूरत। हाँ, ये वो चीज थी कि मैं आपको कह रहा था कि अगर हम जब राउंड अबाउट हम जब प्रोवाइड करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कम होकर 8 आ जाते हैं, तो ये इस तरह से काम होता है। अब ऑब्वियसली यहाँ से जो गाड़ी है मूव करना है जी जी सर ये रावल चौक है। एग्जैक्टली, मतलब रावल चौक ले रहे हैं और भी राउंड अबाउट होते हैं, तो मतलब एक रोड हमारी, बल्कि रावल चौक नहीं है, क्योंकि रावल चौक में ये वाला लैग नहीं है, ऐसा ही है। कश्मीर चौक, हाँ, कश्मीर चौक की एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन कश्मीर चौक में एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह कश्मीर चौक है। कश्मीर चौक में ऑब्वियसली उधर भी कितनी रोड्स हैं, 1 2 उधर भी है 4 है, बल्कि जो रावल चौक है वहां पे 3 है, ठीक है। ये वाली रावल चौक में ये वाली लैग नहीं है, मतलब ये वाली रोड जो अंदर बसीने ने साइड आ रही है रावल चौक के केस में, ये वाली फैजाबाद की तरफ जा रही है और ये आगे कश्मीर चौक की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आज के लेक्चर में मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि हम सबको पता है ये सारी चीजें, लेकिन हमें ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए क्या चीजें हैं।
अच्छा, ट्रैफिक आइलैंड आइलैंड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम एक रेज एक छोटे से एरिया पे रेज प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसको ट्रैफिक यूज नहीं कर सकती और इसी तरह पेडेस्ट्रियन वहां होता है यूज कर सकते हैं। A small raised area in the middle of a road which provides a safe place for pedestrians to stand and a marked lane between two opposing streams of traffic। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि रावल चौक या कश्मीर चौक की एग्जांपल ले लें, अगर वहां पे किसी पेडेस्ट्रियन ने क्रॉस करना है रोड तो ऑब्वियसली इतना लंबा सेक्शन है रोड का क्रॉस सेक्शन, यानी कि मे बी 100 फीट से ज्यादा हो, ठीक है, मे बी 120 फीट हो या इतना, तो इतने बड़े सेक्शन को क्रॉस करना पेडेस्ट्रियन के लिए पॉसिबल नहीं, सेफ्टी क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि देयर आर आई थिंक 6 to 8 लेन्स, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस, तो किसी भी लेन में किसी भी टाइम पे गाड़ी आ सकती है, ठीक है। और बट इंस्टेड ऑफ 120 फीट ऑफ सेक्शन, अगर वो 60 फीट या 40 फीट को क्रॉस करे तो वो जाके आपके जो आपके आइलैंड है उस पे खड़ा हो सकता है, फिर दूसरी साइड जो प्लेयर है वो विजिबल हो तो फिर वो उसको क्रॉस कर लेना, ठीक है। नाउ वी हैव रोटरी आइलैंड्स। Rotary intersections are roundabouts are special form of air-graded intersections laid out for movement of traffic in one direction around a central traffic island. The vehicle entering the rotary are gently forced to move in a clockwise direction in orderly fashion. In clock, यानी कि ये रोटरी आइलैंड या राउंडअबाउट्स एक ही चीज है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी राउंड अबाउट में एंटर होगी तो नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। और ये एयर ग्रेड इंसेक्शन ये टायर है जिसमें गाड़ी को आप क्या कहते हैं एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इस तरफ मूव करना है, ठीक है। सो दिस इज अ रोटरी आइलैंड, ये दिस इज द रोटरी आइलैंड एंड दिस इटसेल्फ दिस होल थिंग इज कॉल्ड राउंडअबाउट। ये उसके आपके एलिमेंट्स हैं, गिव अवे लाइन, ये अप्रोच वेट, और यहाँ पे ये देखें ये एक आइलैंड बनाया हुआ है ये। अब यहाँ पे गाड़ी को बाउंड कर दिया है, जिससे मूव होना है तो वो इधर ही से आके यूं मूव नहीं कर सकते, वो आएगा प्रॉपर इधर इस राउंड अबाउट से मूव कर दिया इधर, ठीक है। तो ये आइलैंड चारों तरफ हमने बनाया है, ये जो ट्रायंगल शेप बनी हुई है, और ये आइलैंड बाकी हमें इसका सबको पता है कि ये आइलैंड का रेडियस हाफ है, यहाँ से ये ले लीजिए, और ये अगर बाय रोड के कॉर्नर तक का रेडियस है तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। एक मेरे ख्याल से ये मतलब ये सारा ये बाय वाला इस एरिया का है ना, इसका रेडियस है, इस बाय वाले को इस इंस्क्राइब्ड सर्कल, ये रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। और ये वेविंग लेंथ मतलब ये वो वाली लेंथ जिस पे आपने मतलब दो आपके आइलैंड्स के जो इन आइलैंड्स के दरमियान जो लेंथ है दिस इज वेविंग लेंथ, ठीक है। अप्रोच वेट, एग्जिट वेट, ये आप सबको पता है, बाकी ये आपकी उसके लिए देखें। अच्छा, अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शंस कौन से हैं जहां पे चैनल ऑब्वियसली इंटरसेक्शन एरिया पेव्ड एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन व्हीकल्स, यानी कि अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन वो है जहां पे हमने ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को कैलकुलेट किया था या देखे थे, वो अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन है, ठीक है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं हो गाड़ी को। तो हेंस द अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन या ऑल पेव्ड, सारा एक ही है, जहां पे आइलैंड नहीं है, सिंपल सी बात है। और द लोएस्ट क्लास ऑफ इंटरसेक्शन easiest in the design but most complex in the traffic operation, obviously resulting in maximum conflict area and more number of accidents unless controlled by traffic signals or police, ठीक है। तो obviously traffic signals भी आप वहाँ पे लगाएंगे या पुलिस होगी तब जाके वहाँ पे एक तरह से conflicts जो है खत्म होंगे, otherwise वो ज़्यादा dangerous हैं traffic के लिए। And now we have the levels of intersection control, यानी कि intersections तो हमने देख लिया हमारे पास कौन कौन से हैं, एंड ग्रेड सेपरेटेड। एड ग्रेड की अगर बात करें तो उसमें भी चैनलाइज्ड अनचैनलाइज्ड, ठीक है। तो उसको कंट्रोल हम कैसे, एक तो पैसिव कंट्रोल, पैसिव कंट्रोल मतलब एक्टिव और पैसिव का हम सबको आइडिया है, व्हाट इज पैसिव व्हाट इज एक्टिव। तो पैसिव कंट्रोल में
एक तो है नो कंट्रोल, बस कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है जो जैसे जा रहा है वहां पे मुझे लगता है एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरा आप ट्रैफिक साइंस लगा रहे हैं, साइन बोर्ड लगा रहे हैं वहां पे पार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक साइंस प्लस पार्किंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव कंट्रोल। एक्टिव कंट्रोल क्या होगा या सेमी कंट्रोल? सबसे पहले यानी कि एक्टिव से पहले सेमी देखते हैं। सेमी में आप क्या करते हैं, चैनलाइजेशन करते हैं। सेकेंडली आप ट्रैफिक रोटरीज बनाते हैं। ट्रैफिक रोटरीज मींस कि आप उसको वो दे देते हैं, राउंड अबाउट दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल। और एक्टिव कंट्रोल क्या है कि आप प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स दें। ऑब्वियसली जहाँ पे होंगे वहाँ पे अगर पुलिस नहीं भी होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि अपना हर बंदा जो है, हर लेन वाली जो ट्रैफिक है वो सिग्नल्स को देख के चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो हमने सबसे पहले टाइप पढ़ी, तो वो वहां पे जो है आप लेवल ऑफ जो इंटरसेक्शन कंट्रोल है वो सबसे ज्यादा है या सबसे अच्छी है। आगे जो दो तीन स्लाइड्स हैं, मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन लेआउट, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम इंटरसेक्शन की टाइप जो है ना डिसाइड करते हैं। ये आप लोग खुद 3 स्लाइड हैं, ये पढ़ लें। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर इन केस आपको इशू होता है तो देन यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर ambiguity at any time, ठीक है। So let us start our next next small lecture, ठीक है, छोटा सा है जिसमें हम डिजाइन स्पीड्स को देखेंगे। तो आई होप these slides are visible to you, नजर आ रही हैं डिजाइन स्पीड? Yes, sir. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट देन। Yes, sir. अच्छा, डिजाइन स्पीड्स का हम सबको आइडिया है। बिफोर डिजाइनिंग एनी रोड फैसिलिटी, आइदर वो रोड हमारी रूरल रोड होगी, अर्बन रोड हो सकती है, वो फ्री वे हो सकते हैं, मोटरवे हो सकते हैं, वो लोकल हो सकते हैं, ठीक है। तो हर टाइप ऑफ रोड के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी डिजाइन, एक होती है डिजाइन स्पीड, एक होती है अलाउएबल स्पीड। डिजाइन स्पीड वो जिसके ऊपर हम अपने रोड फैसिलिटी को डिजाइन करते हैं, और अलाउएबल स्पीड वो है जिस अलाउएबल स्पीड के साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। आप अगर एग्जांपल ले लें इसकी कश्मीर हाईवे की, तो वहां पे क्लियरली साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि जो हैवी ट्रैफिक है एचटीवीज के लिए, एचटीवीज इस स्पीड पे जाएगी, एलटीवीज जो है वो इस स्पीड पे जाएंगी, ठीक है। यानी कि उनके लिए एलटीवीज के लिए नॉर्मल स्पीड ज्यादा होती है, एचटीवीज के लिए स्पीड कम होती है। और ये जो डिजाइन स्पीड है ओब्वियसली ये एक तो हमें स्टैंडर्ड्स जो है आइस्टो के, तो वो एक बताते हैं कि डिजाइन स्पीड इतनी होनी चाहिए, ये रोड होगी तो इतनी स्पीड होगी। लेकिन अगेन मैं आपको पहले बता दूं, जो ये बातें आगे मेरी स्लाइड में जो डिजाइन स्पीड है वो डिपेंड करती है टोपोग्राफी पे, वो इस एरिया पे डिपेंड करती है। अब अगर आप मोटरवे बना रहे हो, मोटरवे के आसपास आसपास मींस के कुछ डिस्टेंस पे कोई कमर्शियल एरिया है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहां पे ऑब्वियसली इंटरचेंजेस होंगे, तो वहां पे फिर आपके लिए एक तरह से स्पीड जो है कम होगी, या बिल्कुल जहाँ पे फ्री वे है तो वहां पे तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो द ये हम किधर पहुंच गए, अच्छा, तो डिजाइन स्पीड अकॉर्डिंग टू AASHTO, it is a maximum safe speed that can be maintained over a specified section of highway when conditions are so favorable that the design features of a highway governs। यानी कि ये वो स्पीड है, वो सेफ स्पीड है जिस पे जो गाड़ियां जो है ना सेफली मूव कर सकती हैं उस रोड सेक्शन के ऊपर, ठीक है, उस हाईवे के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट कि आप उस हाईवे से जो जो उसके डिजाइन जो इंटेंडेड फंक्शंस हैं वो आप उससे ऑब्टेन कर रहे हैं। क्या लाइक इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज
डिजाइन स्पीड इज 120, ठीक है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो ऑब्वियसली हम वो डिजाइन स्पीड पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो डिजाइन फीचर है ना, डिजाइन फीचर ऑफ हाईवे जो आखिर में बात की है, वो डिजाइन फीचर ऑफ हाईवे वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। गवर्नमेंट जो वो इसमें बात की है, सो दैट द डिजाइन फीचर ऑफ हाईवे गवर्नमेंट, अगर हाईवे के जो डिजाइन के फीचर्स हैं वो सारे के सारे मतलब फुलफिल हो रहे हैं, तो तब वो जो स्पीड है, अलाउड स्पीड है, वो जो है ना दैट इज योर डिजाइन स्पीड, ठीक है। तो वो उस केस में वो आप कह रहे हैं कि दैट इज अ सेफ स्पीड, ठीक है, that can be maintained or stretched over that highways actually. And these are the design factors, okay, which affect which affect the design speed. Type of road, जो मैं already आपको बता चुका हूँ. Type of road, importance of road, surface characteristics of road. Obviously आप एक हाईवे बनाते हैं, ठीक है, आप कहेंगे भाई ये हाईवे है लेकिन मैं इसको ऊपर से इसकी सरफेस जो है पेव नहीं करूंगा, तो ऑब्वियसली वो आप वो रोड तो या डैमेज होगी, आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे या रिहैबिलिटेशन उसकी नहीं करेंगे, तो उस केस में तो उसकी कंडीशन अगर सरफेस की वो खराब हुई तो वहां पे डिजाइन स्पीड का कोई फायदा ना होगा, या आप उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, अगेन ये हमारा जो लेवल ऑफ सर्विस है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक जो है ना उससे रिलेटेड है लेवल ऑफ सर्विस से, यानी कि ट्रैफिक जितनी ज्यादा होगी तो उतनी आपकी जो डिजाइन स्पीड है वो कम होगी, ठीक है, जो आपकी मूविंग स्पीड है वो कम होगी। सिमिलरली रोड ज्योमेट्रिक्स एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, यानी कि ज्योमेट्री अगर आपने जहाँ पे बिल्कुल शार्प कर्व्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं तो वहां पे भी आपकी स्पीड जो है इफेक्ट होगी। टोपोग्राफी के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अगर इस्लामाबाद से मरी की तरफ मूव करें तो वहां पे अपहिल है, थ्रू आउट अपहिल है, ठीक है। तो उस अपहिल पे अगर आपको बेशक 120 अलाउ किया हुआ है, एक अपहिल है, दूसरा वहां पे जो ज्योमेट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है इस सेंस में कि वहां पे कर्व्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो वहां पे आपकी जो स्पीड है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। सिमिलरली वेदर कंडीशंस, वो तो इन एनी केस टोपोग्राफी भी अच्छी हो, रोड ज्योमेट्री भी अच्छी हो, वेदर कंडीशंस ना हो तो आपकी जो है वेदर कंडीशन में विंड स्पीड भी आ जाती है, रेनफॉल भी आ जाती है, फॉग भी आ जाती है, आजकल फॉग है तो ये इफेक्ट करती है। एंड अगेन साइड डिस्टेंसेस आर लिंक्ड विद फॉग, धुंध, ठीक है। तो these are the factors which affect the design speed. Now, how to choose the design speed? Generally, the design speed of highways are chosen by administrative decision, and in Pakistan, this decision is to be taken by NHA, National Highway Authority. Consequently, the design speed for a particular type of highway will vary from country to country. मैंने बात की जो स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ या जो अमेरिकन के जो होते हैं वो अमेरिकन आईएसओ तो अमेरिकन का होगा, ब्रिटिश के जो भी हैं वो तो ऑब्वियसली एक वर्ल्ड वाइड गाइडलाइंस तो दे देंगे, लेकिन अगेन टोपोग्राफी पे डिपेंड, बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, और कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अब अगर हम चाइना की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे चूंकि कंजेस्टेड है बहुत ज्यादा, या इंडिया की एग्जांपल ले रहे हैं तो वहां पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड लोकेशन पे। तो इसी तरह अगर आप एक लेस कंजेस्टेड कंट्री को ले रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली डिजाइन स्पीड ज्यादा हो, अच्छी हो, so they vary. Rural roads, the Department of Transport in connection with regard to design speed recognize that vehicle speed vary according to the impression of constraints that the mainline road alignment and layout imparts to driver. यानी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट रिकमेंड कर रहा है कि जो डिजाइन स्पीड है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, कि उस इंप्रेशन पे डिपेंड करती है कि आपकी जो मेन रोड की जो अलाइनमेंट है वो कैसी है, उसका लेआउट कैसा है और उसके बाकी फीचर्स कैसे हैं। ड्राइवर ऑब्वियसली उसी चीज को देख के ही अपने स्पीड जो है वो मेंटेन रखेगा या काम करेगा जो भी है। Consequently, the department utilizes a graphical procedure which is based on measurement of this constraint when selecting mainline design speed for rural roads. यानी कि डिपार्टमेंट में क्या कह रहा है कि ग्राफिकल प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं जो बेस कर रहा है किस चीज पे, कंस्ट्रेंट्स पे, कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं आपकी
जो हाईवे है या जो भी है उसकी मेन लाइन पे कितनी कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, कंस्ट्रेंट ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, ठीक है। सो द टेबल बिलो शोज टिपिकल डिजाइन स्पीड फॉर बोथ मेन लाइन एंड कनेक्टर कैरेजेस, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मेन लाइन हमारी इसकी मरी रोड की ले लें फैजाबाद से आगे की तरफ, और कनेक्टर हमारी रोड होगी जहाँ से हम राइट साइड मूव करते हैं बसीन की तरफ, ठीक है। सो दिस इज अ रोड टाइप, मोटरवे या डुअल कैरेजवे हो गया तो वहां पे डिजाइन स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिजाइन स्पीड 120 है और स्पीड लिमिट आप 112 देते हैं, यानी कि आप एक तरफ से सेफ साइड पे रहते हैं, मतलब जिस स्पीड का आपने डिजाइन किया है इट मींस कि आप अगर 120 पे जाएं तो ठीक है, बट दिस इज द डिजाइन स्पीड, मतलब आपने मैक्सिमम को अचीव कर लिया या अल्टीमेट उस पॉइंट पे पहुंच गए, बट इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। और सेफ स्पीड पे रहने के लिए आपको स्पीड लिमिट जो है अथॉरिटीज सजेस्ट करती हैं वो 120, अगर 120 पे डिजाइन नहीं है तो 112 वो आपको सजेस्ट करती हैं, और उसके बोर्ड लगे होते हैं, हम सबने देखे हैं। सिंगल कैरेज वे होगा और डी रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होगी, तो उस पे 100 किलोमीटर पर आवर, और इसी तरह उसकी डिजाइन स्पीड है और 96 जो स्पीड लिमिट है, ठीक है। अदर्स होंगी तो उस पे 85 या 70 70 60 85 80, ये उसकी डिजाइन स्पीड होंगी, ठीक है। सिमिलरली स्पीड लिमिट भी फिर उसी तरह काम करती है होती है। ये इसी तरह रोड कनेक्टर, ये रोड मेन रोड टाइप थी मेन, ठीक है। कनेक्टर टाइप लिंक रोड होगी, स्लिप रोड होगी, तो 85 70 एंड सिमिलर होगी, ये उसी तरह की एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। रूरल रोड में क्या रहेगा कि डिजाइन स्पीड्स क्या होंगी कि the majority of vehicle speeds on dual and single carriage highways are generally less than the design speed, ठीक है। obviously डिजाइन स्पीड यानी कि 120 है, और लोअर डिजाइन स्पीड्स फॉर एग्जांपल 40 या 50 किलोमीटर आर रेयरली यूज्ड नाउअडेज एज अ बेसिस फॉर द डिजाइन ऑफ एनी सिग्नल लाइन, यानी वो कह रहे हैं कि आजकल के दौर में ना 40 और 50 की बेस पे जो रोड्स हैं वो डिजाइन नहीं की जाती, बल्कि वो 120 पे की जाती है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और प्रोवाइडेड है कि कंस्ट्रेंट कम हो। अच्छा, operating speed rarely exceeds the speed standard of individual element of horizontal alignment, through they may be greater for vertical alignment element. When the highway has a design speed less than about 80 kilometer, 80 actual speed again vary considerably according to the alignment condition, and generally they are greater than the design speed. In this situation, it is quite invalid to consider design speed as effective in any real way of driver speed behavior. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप एक डिजाइन स्पीड कर दें, डिजाइन स्पीड ठीक है आपने 80 रखी या 120 रखी, और वहां पे कंस्ट्रेंट अगर ज्यादा होंगी या अलाइनमेंट के इश्यूज हैं, तो उस केस में वो जो डिजाइन स्पीड है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ना, बल्कि वो जो ड्राइवर है वो उस पर डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड पे जा रहा है, ठीक है। बाकी स्लाइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको फिर डिजाइन स्पीड वही टोपोग्राफी और फिजिकल लिमिटेशंस की बात कर रहा है, इसको भी जस्ट रीड कर लें, कुछ नहीं है इनमें। अर्बन रोड में क्या होगा, पीछे हम रूरल तो देख रहे थे, द डिजाइन स्पीड फॉर मेन लाइन कैरेजवे ऑफ अर्बन मोटरवे शुड आइडियली बी एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। In British practice, the design speed for urban roads are normally selected with reference to the speed limits visualized for road, so as to permit small margin of speed in excess. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश प्रैक्टिस में क्या है कि वो डिजाइन स्पीड को क्या करते हैं, मैक्सिमम रखते हैं, ताकि और इसी तरह शो कम करते हैं, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो कम करते हैं, ताकि अगर वो थोड़ी बहुत एक्सीड भी करें उसी जोन के अंदर रहें, ठीक है। बाकी ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने डिजाइन स्पीड दी है, डिजाइन स्पीड 60 होगी तो स्पीड लिमिट उन्होंने 48 इसलिए की है, 70 होगी तो 64 है, 85 हो तो 80 है, 100 होगी तो 96। हाँ, बाकी आप देख लें। ये मैंने एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज ऐड की है कि स्पीड लिमिट इन पाकिस्तान नॉर्मली, क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट उसी एनएचए डिफाइन करेगा, तो मोटर क्लास अगर एलटीवीज होंगी तो वहां पे मोटर रेस पे 120 किलोमीटर पर आवर होती है, और इसी तरह अगर एचटीवीज है या पीएसवीज है तो वो पैसेंजर्स व्हीकल है तो वो वहां 110 होती है, मोटर कार्स हैं तो एलटीवीज, ठीक है, हाईवे के लिए, ठीक है। अब देखें मोटरवेज अब ये हाईवेज है,
मोटरवे पे ऑब्वियसली आपको जो है ना इंटरप्शंस वो कम होती हैं, तो वहाँ पे 120 110 है। हाईवेज पे वही गाड़ियाँ हैं लेकिन हम 100 और 90 है। बाकी जो अर्बन आर्टीरियल रोड्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान में 80 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अर्बन रेजिडेंशियल एरिया और हिली एरिया में 550 to 70 किलोमीटर पर आवर। नियर स्कूल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स या मॉस्क वहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। और ये सोर्स किसके नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ठीक है, ये वहाँ से चीज़ मैंने उठाई है। सो दिस इज डिजाइन स्पीड्स। आज के जो दोनों लेक्चर थे रिलेटिवली दे वर सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। सो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर थे वो भी ऐसे ही हैं, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं असल में उसको पढ़ना है। बाकी आप लोग खुद भी कर लें, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम